of the Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, bless you, bless you, bless you. Lord, we praise your name. Praise your name. Praise your holy name. Praise your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless you, Lord God. Hallelujah. Bless you, Lord God. Hallelujah. Bless your holy name. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की. Praise the name of the Lord. Praise the holy name of the Lord. Holy name of the Lord. Lord, we praise your holy name. Hallelujah. We praise your holy name. Yahusha HaMashiach, we praise your holy name. Yahusha HaMashiach, we praise your holy name. Yahusha HaMashiach, praise your holy name. Yahusha HaMashiach, we bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. We bless you, bless you, bless you, bless you, bless your name. Praise your name, praise your name. ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो, जां जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है. ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा. रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह कमाल दा. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है. हालेलुया. मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम. महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम.
नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा तू आ है दुल्हन मुंतजर, नजर अफलाक पर, नगाड़े को सुनने आए हैं हम, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम, आए हैं हम। Bless you, Lord. Lord, we magnify your name. Lord, we come before you this evening. Lord, we come that you will pour out your presence over us. We come to seek you, Lord. We come to seek your presence. Lord, we come to seek your presence. Fill our hearts with the warmth of that lingering taste of togetherness with you. Fill us, Lord. Fill us, Lord. Fill us, Lord. Fill us, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावंद, अपनी हजूरी से हमारे दिलों को भर। खुदावंद, हम खाली दिल लेकर आए हैं। हालेलुया। खुदावंद, मेरा खाली दिल भर अपनी हजूरी से। कर दे रहम पिता, तू दे दे रूह दा मसा। गाइए मेरे साथ। कर दे रहम पिता, दे दे रूह दा मसा। खाली दिल लेके आया, खाली दिल लेके आया। हालेलुया। कर दे रहम पिता, दे दे रूह दा मसा। खालिक राजक है तू जगदा, खालिक राजक है तू जगदा। पाप उठाया सारे जगदा, पाप उठाया तू सारे जगदा। सबके लिए तू मुआ, दिन तीसरे जी उठा। कर दे रहम पिता, दे दे रूह दा मसा। खाली दिल लेके आया, मैं खाली दिल लेके आया। हाँ हालेलुया। कर दे रहम पिता, दे दे रूह दा मसा। अन्ने गूंगे बोले सारे, लंगड़े लूले बोले सारे। रोग पुराने दुखां दे मारे, रोग पुराने
दुखां दे मारे यसु तू कर दे चंगा, यसु तू कर दे चंगा, रहम तेरा है सदा, कर दे रहम पिता, दे दे रूह दा मसा, कर दे रहम पिता, दे दे रूह दा मसा, कर दे रहम पिता, दे दे रूह दा मसा. Hallelujah. Lord, speak to us from your word. Open our ear, open our heart to receive your word. I pray, Father, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. We are going to continue the subject of Mystery Babylon. And this is going to be the eighth session. हम सीख रहे थे, दिन में वो थोड़ा कनेक्शन सही नहीं था तो मैंने टर्न ऑफ कर दिया. हम लोग सीख रहे थे परमेश्वर के कलाम में से कि जो इजरायलियों को यहोवा परमेश्वर ने 7 गुना सजा बढ़ा दी, उनको 390 डेज की पनिशमेंट जो थी, 390 ईयर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि 430 ईयर्स की जजमेंट आई उनके ऊपर. 70 साल गुना 7 490 हो गए. लेकिन उन लोगों ने 60 ईयर्स पहले बीच में से निकाल लिए थे क्योंकि दे वर ऑलरेडी इन द बॉन्डेज. तो 430, और मैंने आपको ये बताया कि ये 430 जो हैं ये इज़िकियल चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1 to 8, 430 साल तक परमेश्वर ने जो उनको दंड देना था, क्योंकि 430 साल तक राजाओं ने, पहला राजा दूसरा राजा की पुस्तक का जो पीरियड है वो 430 ईयर्स का है. 430 साल की सजा परमेश्वर ने इज़िकियल नबी को अपने ऊपर उठाने के लिए कहा. 390 दिन एक साइड पे सोने के लिए लेफ्ट साइड पे, और 40 ईयर्स के इक्विवेलेंट राइट साइड पे सोने के लिए. और परमेश्वर ने क्या कहा कि लिमिटेड खाना जो भोजन है वो पास में रखना है. और परमेश्वर ने कहा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, टॉयलेट होता है ना मनुष्य का सूखा हुआ, उसके जैसे उपले होते हैं, उसके ऊपर बना के खाना है. तो परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से याचना की कि प्रभु ये तो बहुत डिफिकल्ट है. तो फिर प्रभु ने उसे कहा, इज़िकियल 4 अध्याय 1 से 8 वचन पढ़ लीजिएगा. फिर प्रभु ने कहा कि तुम जानवर गऊ के गोबर के उपले बना के उस पर खाना. तो नबी 430 दिन ऐसे लेटा रहा. तो प्रभु ने क्या कहा, जो मैं आपको अक्सर वचन देता हूं, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसका 18, 21, 24 और 28, बहुत क्रिटिकल वचन है. 4 बार प्रभु यहोवा कहता 7 गुना सजा दूंगा, 7 गुना सजा दूंगा, 7 गुना सजा बढ़ाऊंगा तुम्हारी में. समझ रहे हैं आप? तो इजरायलियों को ये सजा मिली. परमेश्वर ने 7 टाइम्स उनकी सजा मल्टीप्लाई की. 7 × 360 बनता है 2520 साल. तो अब इजरायलियों को 2520 साल पराए देश में रहना पड़ा. एजरा, नेहेमिया, जरूब्बाबिल की लीडरशिप में केवल 50,000 के करीब लोग वापस लौटे. जो 10 गोत्र थे जो अशूर की गुलामी में गए थे, ये लोग तो यहूदा, बेंजामिन और लावी लोग थे जो बाबिलोन की गुलामी में गए. लेकिन इजराइल का बड़ा हिस्सा जो नॉर्थ में रहता था वो अशूर की गुलामी में चला गया. 722 BC में वो वापस नहीं लौटे. उनका अधर्म बहुत बड़ा था. तो ये जो डिक्रीज मिली, जो मैं आपको बताता हूं कि साइरस राजा ने डिक्री दी और अर्टाजेरेक्सस राजा ने डिक्री दी. 3 डिक्रियां मिली इनको. ये केवल सदर्न किंगडम को मिली, यहूदा को. यही वापस लौटे. बाकी पूरी दुनिया में डिस्पर्स हो गए. उनके ऊपर दंड आया और परमेश्वर ने 360 सालों को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2520 साल. और ये लोग दुनिया में तितर बितर हो गए. और मैंने आपको बताया कि 2520 साल जो हैं, इनको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, जूइश, ये सोलर कैलेंडर है,
इसको जब हम जूइश कैलेंडर में लेकर आते हैं तो मैंने आपको बताया था 2520 साल के 9,07,280 दिन बनते हैं टोटल। 9,07,200 एक्चुअली 200 दिन टोटल बनते हैं। और 9,07,200 दिन आपको मालूम कब पूरे होते हैं? जब 9,07,200 दिन पूरे होते हैं भाई और बहनों, हालेलुया, 14 मई 1948 को। पूरी कैलकुलेशन मैंने की हुई है इसकी। मैं मॉनिटर पे आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस हैं। तो प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत बात कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में और उसके 32 वचन में, मत्ती 24 के 32 में, ये जो इजराइल का वापस लौटना और देश बनना, आपको मालूम इजराइल कभी राष्ट्र नहीं बन सकता था। यहोवा की सजा के कारण ये दुनिया के कोनों कोनों में तितर बितर हो गए। जो खुदावंत के खादिम थे इजरा, नेहेमिया, जरूब्बाबिल, जिन्होंने शहर पनाह को बनाया। और मैंने आपको डेट बताई, एग्जैक्ट डेट, पूरी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो शहर पनाह जो बनाई गई उसकी मैंने आपको डेट दी है। शहर पनाह कौन से दिन को बनाई गई, एग्जैक्ट उसकी डेट आपको मिलेगी। 16 अगस्त 518 बीसी, 16 अगस्त 518 बीसी को नहेमिया ने उस शहर पनाह को बनाया, जबकि जरूब्बाबिल टेंपल को बना रहा था। हालेलुया। तो भाई और बहनों, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों सुनिए, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रभु कहता है क्या एक देश एक दिन में पैदा हो सकता है? यशायाह नबी की पुस्तक में प्रभु कहता है मैं एक देश को एक दिन में पैदा करूंगा। इजराइल कोई देश नहीं था। आप हिस्ट्री पढ़ें, 18 सेंचुरी में लीग ऑफ नेशन पैदा हुई और 18 सेंचुरी के बाद में ही जायनिज्म का एक ख्वाब देखा लोगों ने, सियोन बनने का, यरूशलेम बनने का। लीग ऑफ नेशन बनी। लीग ऑफ नेशन की जो प्रोटोकॉल था भाई और बहनों, वो खत्म हो रहा था। जब लीग ऑफ नेशन का प्रोटोकॉल, जब लीग ऑफ नेशन बनी, लीग ऑफ नेशन के तहत इजराइल को, खास करके यरूशलेम को, ब्रिटिश लोगों के अधीन कर दिया गया। उससे पहले यरूशलेम मुस्लिम लोगों के अधीन था। यरूशलेम को हर कौम ने, हर सल्तनत ने, हर देश ने, इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग टीचिंग है जो फिर कभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कौन कौन से देश की गुलामी में इजराइल रहा, यरूशलेम किस किस देश के गुलाम रहा, कौन कौन से देश ने इस पे कब्जा किया, जूइश लोग पूरी दुनिया के कौन कौन से देश में गुलाम बन के असीरी में तितर बितर होके घूमते रहे। और प्रभु ने कहा मैं इन्हें वापस लेके, सजा मैंने दी है, प्रभु कहता है मैंने इनको सजा दी है, मैंने इनको तितर बितर किया है। प्रभु कहता है मैं इनको मारूंगा। 28 अध्याय पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण। प्रभु कहता है मैं इनको हर रोग से मारूंगा, हर बीमारी से मारूंगा, हर लानत इनके ऊपर लेके आऊंगा, इनको मैं सुख और चैन से रहने नहीं दूंगा, इनके पाँव के तलवे आराम नहीं पाएंगे, मैं धरती की कौमों में गश्त कराऊंगा, इनको मिटाऊंगा, बुरी तरह से इनकी हस्ती मिटाऊंगा। लेकिन क्या कहता है नबियों के वसीला से? कहता फिर भी मैं अपने नाम के कारण, फिर भी प्रभु यहोवा कहता अपनी शान के कारण, फिर भी मेरे दास इब्राहिम के कारण, मेरे दास इसहाक याकूब के कारण, मेरे दास राजा दाऊद के कारण मैं इनके ऊपर दया करूंगा और इन्हें बचा के लाऊंगा। प्रभु कहता मैं पृथ्वी की कौमों कौमों में से इन्हें निकाल के लाऊंगा। यशायाह नबी के वसीला से, झिरमिया नबी के वसीला से, माइनर प्रॉफिट के वसीला से परमेश्वर ये अलौकिक वादे करता है, मैं अपने गुस्से में सजा दूंगा लेकिन अपनी करुणा और दया कभी इनसे हटाऊंगा नहीं। तो प्रभु ने कहा था, यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी लगभग 3031 एडी में दी, सन 3031 में। क्या भविष्यवाणी? मत्ती 24 की 32, कि जब तुम फिग ट्री को, इंजीर के दरख्त को फलता फूलता, इसकी कोपले फूटती देखो तो समझ लेना कि ऋतु पास आ गई है। ये फिग ट्री कौन है भाई और बहनों? ये फिग ट्री है इजराइल। इजराइल का देश बनना, इजराइल का राष्ट्र बनना। इजराइल 3500 साल से देश था ही नहीं। इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, इसे फिलिस्टिया कहा जाता था। फिलिस्तियों ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था 14 मई 1948 को।
विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर हैरी ट्रूमैन, दोनों ने, भाई और बहनों, दोनों खुदा के खादिम थे। विंस्टन चर्चिल तो जूइश बैकग्राउंड का था, लेकिन जो ट्रूमैन, प्रेसिडेंट ट्रूमैन, वो कलाम जानता था खुदावंद का। इन्हें मालूम था कि इजराइल का देश बनना ज़रूरी है, तो इन दोनों ने इनिशिएटिव लिया और पृथ्वी के देशों के लोगों को फ़ोन पे बात किया, और भाई और बहनों, सर्वसम्मति से क्या हुआ? आपको मालूम, यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई? इसके लिए, इजराइल के लिए। और लीग ऑफ नेशन क्यों बनी? इजराइल के लिए। प्रभु ने कहा एक दिन में एक राष्ट्र पैदा होगा। 14 मई 1948 को, 14 मई से पहले इजराइल स्टेट बनेगा, देश बनेगा, ऐसा कोई ख्याल ही नहीं था। तो प्रभु ने कहा मत्ती 24:32 में, जब ये काम होता तुम देख लो, जब इंजीर के वृक्ष की कोपले फूटे। ये कोपले फूटी, 2520 साल की गुलामी, पहले 70 ईयर की गुलामी, फिर 70 ईयर की गुलामी, फिर 2520 साल की गुलामी। ये यहोवा ने तोड़ी 14 मई 1948 को। हालेलुया। आपकी आंखों के आगे जो लोग, मैं तो खैर इतना बूढ़ा नहीं हूं, जो 1948 में पैदा हुए या उससे पहले, वो लोग जानते हैं इस ईरा को। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है ये पीढ़ी नहीं टलेगी जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाए। कौन सी पीढ़ी? वो पीढ़ी जो 1948 के बाद पैदा हुई। भाई और बहनों, 1948 14 मई एक बेंचमार्क है कि इजराइल देश बन गया, जैसा कि प्रभु ने अपने कलाम में वायदा किया था कि ऐसा होगा। एग्जैक्ट वही डेट है, वही दिन है, वही समय है जो प्रभु ने मुकर्रर किया था। तो प्रभु राष्ट्रों को खड़ा करता है, प्रभु राष्ट्रों को गिरा देता है। इट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ही विल रेज द थ्रोन्स, ही विल एस्टैब्लिश द किंग्स ऑन द थ्रोन्स, एंड ही विल क्रिएट एम्पायर्स अकॉर्डिंग टू हिज गुड प्लेजर, एंड इन हिज सॉवरेन माइंड एंड डिवाइन पर्पस ही may topple down any kingdom. It is God who gives dominion, authority and reign in the hands of human being. He is the sovereign king. Hallelujah. All other kings on the earth are, he is suzerain, and the earthly kings are vassal kings. Only Jehovah, केवल यहोवा किंग है, राजा है। Hallelujah. यहोवा को छोड़ कोई और राजा नहीं है, बाकी सब वासल किंग हैं, यहोवा के चरणों में बनाए गए राजा हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो असली कहानी है वो बाबल की है, बेबीलोन की और जेरूशलेम की। दोनों की वॉर है बाइबल में। जेरूशलेम खुदा का शहर है, सिटी दैट गॉड क्रिएटेड। बेबीलोन इज अ सिटी दैट द डेविल क्रिएटेड, एंड ह्यूमन who are possessed by the forces of darkness. They took an initiative Genesis 11 में कि हम अपने लिए नाम करेंगे, हम अपने लिए शहर बनाएंगे। तो डैनियल के 4 अध्याय में अगर आप देखें तो दानियल 4 अध्याय में एक बड़ी अद्भुत बात होती है। दानियल 4 अध्याय पूरा पढ़िएगा। दानियल 4 अध्याय में 3 वचन हैं जिसके अंदर जिक्र है अय्यार का। हिब्रू वर्ड है अय्यार। आपको मालूम ये अय्यार कौन है? इंग्लिश में लिखा है वॉचर्स। दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, दानियल कहता है मैं अपने बिस्तर में लेटा था और मैंने अपने ख्वाबों में क्या देखा कि अय्यार आया ऊपर से। अय्यार, ये अय्यार कौन है? ये हिंदी में लिखा है होली वॉच, होली मैन, पवित्र जन। भाई और बहनों, ये अय्यार्स हैं, वॉचर्स। वॉचर्स कौन है? ये खास किस्म के अंजालक बीइंग हैं, अय्यार। ये यहोवा परमेश्वर की कौंसल्स हैं, जुडिशरी हैं। हेवन में अलग अलग यहोवा की जुडिशरीज हैं जहां पे ये काउंसलर लोग हैं, डिवाइन काउंसिल हैं, जो यहोवा परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं पृथ्वी पे। यहोवा परमेश्वर के द्वारा अधिकृत किए गए हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने इन्हें मुकर्रर किया है। ये यहोवा परमेश्वर के लिए
फैसले लेते हैं। हालेलुया। और ये ज़मीन पे आते जाते हैं। एंड दे लुक लाइक ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों की तरह दिखाई देते हैं। तो पढ़िएगा एक वचन 4 अध्याय में, दानियल 4 अध्याय उसका 13 वचन। आई सॉ इन द विजन्स ऑफ माई हेड एज आई ले इन द बेड, बिहोल्ड ए वॉचर, ए होली वन केम डाउन फ्रॉम हेवन। क्या लिखा आपकी बाइबल में? दानियल 4 की 13 में पवित्र जन लिखा होगा, पवित्र पुरख। ये हैं वॉचर, खास किस्म के एंजेलिक बीइंग हैं। और ये किसके लिए फैसला ले रहे हैं? ये फैसला ले रहे हैं दानियल, इसके लिए बेल्तशज़ार, जिसे हम नबूकदनज़र कहते हैं। हालेलुया। और पढ़िएगा ये क्या कहता है, अय्यार जो आता है, ही प्रोक्लेम्ड अलाउड एंड सेड, चॉप डाउन द ट्री and chop off its branches, strip off its leaf and scatter the fruit. Let the beasts flee from underneath it and let the birds from its branches, but leave the stump and its root in the earth, bound with a band of iron and bronze amid the tender grass of the field. Let the wet dew of heaven, let his portion be with the beast in the grass of the earth. Let his mind be changed from man's, and let a beast's mind be given unto him. Let 7 periods of time pass over. The sentence is by the decree of the watcher and the decision by the word of the holy ones, to the end that the living may know that the Most High rules the kingdom of men. ये जो पवित्र जन आया ना ऊपर से वॉचर, ये फैसला ले रहे हैं यहोवा के लिए। पढ़ लीजिएगा, यहोवा की डिवाइन काउंसिल है, यहोवा की जुडिशरी है। ये यहोवा के बिहाफ पे फैसला लेते। फैसला क्या लिया है कि ये जो राजा है, 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, ये राजा घमंड से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अहंकार से भर गया है। अपने राज्य को देख के अपनी भुजाएं फैला के कहता है, मेरे जैसा कौन है? मैंने बेबीलोन को कितना अद्भुत बना दिया है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन जो थे, वो वन ऑफ द 7 वंडर्स थे एंशिएंट वर्ल्ड का। तो प्रभु का एक खास दूत, होली वन, अय्यार, ये अलग किस्म के एंजल हैं, वो आके घोषणा करता है कि इस दरख्त को काट दो। कौन है ये दरख्त? ये राजा है। इसे काट दो, इसकी शाखाएं काट दो, चॉप ऑफ कर दो, इसका जो फल है उसे फैला दो, और पंछी हट जाएं इसके अंदर से, जानवर भाग जाएं इसके अंदर से, लेकिन इसकी तने को रहने देना और इसकी जड़ों को रहने देना। और 7 साल के लिए ये आदमी जानवर बन जाएगा। और वो उसी समय जानवर बन गया, राजा नबूकदनेस्सर। उसके बाल उगाए, नखून निकल आए, और वो जंगल में रहने लगा जानवरों की तरह। उसका मन इंसान से बदल के जानवर का हो गया। और हिस्ट्री बताती है कि दानियल उस समय नबूकदनेस्सर की मदद करता रहा, सहायता करता रहा, उसकी देखभाल करता रहा, जब यहोवा ने उसे दंड दिया। हालेलुया। भाई और बहनों, अहंकार कभी यहोवा के आगे ठहरेगा नहीं। जब अहंकार होगा, यहोवा परमेश्वर विल मेक श्योर दैट ही हैज टू बेंड इट। अहंकार को यहोवा सीधा करेगा। प्रभु के विषय में हम क्या कहते हैं? हम गाते हैं, कमंडियां कोल ओ न जांदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? घमंडियों का वो सामना करता है। मैं नबूकदनेस्सर के विषय में बताना चाहता हूँ, वो जानवर बन गया, 7 साल तक जानवर बना रहा, जब तक 7 वर्ष बीते नहीं। मैं उसके विषय में आपको बताता हूँ। ये वॉचर का फैसला था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाइबल में आपको इनके नाम मिलेंगे। तो अगर आपको इनका क्रोनोलॉजी नहीं पता है तो आप समझ नहीं पाएंगे। एक और है नबूकदनेस्सर, जिसका नाम है अमुल मर्दूक, जिसने 2 साल तक राज्य किया। ये बहुत बुरा था। अमुल, ईवल मार्डूक कहते हैं इसको। मार्डूक इनका देवता है, जिस देवता का नाम अपने संग लगाया इसने। दूसरा राजा 25 अध्याय का 27 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसका जिक्र मिलेगा, ईवल मार्दूक का। दूसरा राजा 25 अध्याय
और उसका 7 वचन मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ता हूँ। सुने क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा, दे स्लॉटर्ड द सन्स ऑफ जेडकिया बिफोर हिज आईज एंड पुट आउट द आईज ऑफ जेडकिया एंड बाउंड हिम इन चेन्स एंड टुक हिम टू बेबीलोन। 25 का 7 पढ़ा मैंने, 25 का 27 पढ़ता हूँ, 27 पढ़ें। सुने, एंड इन द 37th year of the exile of Jehoiachin, king of Judah, in the 12th month of the 27th day of the month, evil Mordach, the king of Babylon, in the year that he began to reign, graciously freed Jehoiachin. ये evil Mordach राजा है। इसके विषय में जर्मिया 52:3 में भी लिखा हुआ है। ये दूसरा है। इसके बाद है नरिग टिसार। जर्मिया 39 वर्स नंबर 3 में पढ़ता हूं मैं। जर्मिया 39, जर्मिया नबी की पुस्तक, उसका आप निकालिए जर्मिया का 39 चैप्टर 39 अध्याय, जर्मिया 39। और सुनिए तीसरा वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है तीसरे वचन में, देन ऑल द ऑफिशियल ऑफ द किंग ऑफ बेबीलोन केम एंड सैट इन द मिड्स ऑफ द गेट, नरगाल शारेजार ऑफ शमगार, निबूसारशिखिम, रबसरीस, नरगाल सारजार, द रबमाग, विद ऑल द रेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द किंगडम ऑफ बेबीलोन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है नरगाल शाजार। ये असल में सन इन लॉ है नबूकदनेस्सर का। इसकी शादी नबूकदनेस्सर की बेटी से हुई है। इसके बाद जो अगला जो नबूकदनेस्सर है उसका नाम है लाबशी मार्डूक जो है ये केवल 9 महीने के लिए राजा बनता, उसके बाद इसे हटा दिया जाता है। फिर हम एक और फेमस बंदा है हिस्ट्री में, पूरी इसकी हिस्ट्री मिलेगी आपको। इसका नाम था नबोनीदास। लेकिन ये बंदा अरब में जाके रहने लगा, क्योंकि अरब में किसी जो उस पुराने समय के संत कुछ टाइप लोग होंगे, उनके पीछे जो कल्ट और विच क्राफ्ट सिखाते थे, उनके संगति करने लगा। इसके बेटे का नाम था बेलशजार। ये नबोनीदास जो था ये विच क्राफ्ट सॉर्सरी के लिए चला गया नॉर्थ अरेबिया में। इसका बेटा बेलशजार वो को-रीजेंट बना। उसके बीच में हम एक जिक्र पढ़ते हैं नेबोपलासर का, जो 625 से 606 तक राजा बना रहा। उसके बाद नबूचदनजर 606 से 562 तक। ईवल मोर्डाक द सेकंड 562 से 559। उसके विषय में 2 किंग 25 का 27 वचन पढ़िए। फिर वही जो नरगलेसार एसार जर्मिया 39 के 13 में उसके विषय में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। फिर है एक जिसका नाम है लबशी मार्डूक, जो मैंने आपको पहले बता दिया, लबशी मार्डूक। तो ये जो बंदा है जिसका नाम है बेलशजार जो है, दानियल की पुस्तक 5 अध्याय में इसका जिक्र है। दानियल की पुस्तक, जिस समय दानियल कहाँ पे है? बेबीलोन में है। दानियल वापस नहीं गया यरूशलेम। एजरा गया, नहेमिया गया, जरूब्बाबिल गया, 50,000 लोग गए, लेकिन दानियल बेबीलोन में ही रहा। तो जो नबूकदनेस्सर था वो मर गया, जो दानियल को जानता था। उसका बेटा बेलशजार जब गद्दी पे बैठा, राजा बना, तो दानियल तब भी वहां पे था। दानियल का आदर सम्मान तो था, लेकिन ये राजा दानियल को नहीं जानता था, बेलशजार। तो मैं 5 अध्याय दानियल नबी की किताब में से आपको कुछ पढ़ के देना चाहता हूँ। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय सुनिए ध्यान से। दानियल 5 अध्याय में, किंग बेलशजार मेड अ ग्रेट फीस्ट फॉर 1,000 ऑफ हिज लॉर्ड एंड ड्रैंक वाइन इन फ्रंट ऑफ the 1,000. Belshazzar, when he tasted the wine, commanded that the vessel of the gold and silver that Nebuchadnezzar his father had taken out of the temple of Jerusalem be brought, that the king and his lord, his wives and his concubine might drink from them. अब देखिए, जैसे हिंदी की कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब शैतान आएगा, अंधकार आएगा, सबसे पहले इंसान की बुद्धि को ग्रहण लगेगा। ये राजा एक पार्टी कर रहा है, जश्न मना रहा है, शराब चल रही है, औरतें नाच रही हैं, गद्दा नाच,
और इसके बड़े बड़े जो सिप्पा सलार हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, कबाब चल रहा है, खाना चल रहा है, मदिरा चल रही है, सारा जश्न चल रहा है वहाँ पे, म्यूज़िक चल रहा है, गंदा म्यूज़िक। और ये राजा अहंकार में डूबा हुआ है बेलशज़ार। तो शैतान का आत्मा इसके अंदर काम करता है। जब जश्न चल रहा है, पार्टी चल रही है, वाइन चल रही है, औरतें नाच रही हैं, तो ये राजा क्या कहता है? कहता जाओ, वो जो बर्तन मेरा बाप नबूकदनसर यहूदियों की हैकल में से लेकर आया है, जिसे नबूकदनजर ने एक स्टोर हाउस में रख दिया था, वो सोने के बर्तन और चांदी के बर्तन जो यहोवा परमेश्वर की सेवा के लिए मखसूस किए गए थे, यहोवा परमेश्वर की पवित्र सेवा के लिए मखसूस किए गए थे वो बर्तन, उसको नबूकदनजर ने हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन बेलशज़ार के अंदर बदबू आई है। बेलशज़ार कहता है कि वो बर्तन लाओ, हम उनके अंदर दारू पिए। तो वो बर्तन लाए जाते हैं और बेलशज़ार उन बर्तनों के अंदर दारू पीता है। औरतें नाचती हैं, कनक्यूबाइन वहां पे बैठी हैं। सुने क्या लिखा है? देन दे ब्रॉट, तीसरा वचन, देन दे ब्रॉट द गोल्डन वेसल दैट हैड बीन टेकन आउट ऑफ द टेम्पल, द हाउस ऑफ गॉड इन जेरूसलम, एंड द किंग एंड हिज लॉर्ड एंड हिज वाइफ एंड कनक्यूबाइन ड्रैंक फ्रॉम देम। वो सोने के बर्तन जो परमेश्वर के लिए पवित्र थे, जो यहोवा की हैकल के थे, चांदी के बर्तन जो यहोवा की हैकल के थे, राजा, राजा की रानियां, उसकी कनक्यूबाइन, उसके जितने मंत्री गण हैं, सब लोग जो नाच कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, डांस चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, वो यहोवा के पवित्र बर्तनों में से दारू पीते हैं। दे ड्रैंक वाइन एंड प्रेज्ड गॉड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन, वुड एंड स्टोन। तो वहां पे कैसी कैसी मूर्तियां पड़ी हैं देवताओं की? सोने की मूर्तियां हैं, चांदी की मूर्तियां हैं, तांबे की मूर्तियां हैं, लोहे की मूर्तियां हैं, लकड़ी की मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं। उन मूर्तियों की वो पूजा भी करते हैं, और मूर्तियों की पूजा और जनाकारी दोनों संग संग चलते थे। डिबॉचरी और ऑल काइंड ऑफ ऑर्जीज एंड ऑल काइंड ऑफ लाइसेंशियस पार्टी। तो क्या लिखा? जब राजा ये कर रहा था तभी क्या हुआ? 8वां वचन पढ़ें। इमीडिएटली द फिंगर ऑफ अ ह्यूमन हैंड अपीयर्ड ऑन and wrote on the plaster of the wall of the king's palace opposite the lampstand, and the king saw the hand as it wrote। तो क्या हुआ? राजा के महल की दीवार के ऊपर एक हाथ आया और वो हाथ लिखता है। हालेलुया। आपको मालूम क्या लिखता है? वो हाथ लिखता है, मने मने तकेल उपसरीन। ये जो राजा है ना बेलशज़र, इसका जो फादर है नबोनिदस, जो इसका वो अंकल है नबोनिदस, वो पर्शिया में चला गया है। वो नॉर्थ अरेबिया में है। और नॉर्थ अरेबिया में वो क्या करता है? वो और ये जो उसका भतीजा है बेलशज़र, ये मून गॉड की पूजा करते हैं। यहां पे लिखा है कि कौन कौन सी मूर्तियां किस किस चीज की बनी हुई हैं। मून गॉड की, चांद की पूजा करते हैं, जिसे अलेला कहा जाता था। बेलशज़र सिलेंडर, अगर आप गूगल सर्च करेंगे बेलशज़र सिलेंडर, आप एक सिलेंडर है, मेटल का बना हुआ है, बड़ा सिलेंडर है, वो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा है। आप ब्रिटेन में जाके म्यूजियम में जाके वो देख सकते हैं, और उसके ऊपर एंशंट राइटिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। अलेला, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, उसकी पूजा करता था वो। सीरियक टेक्स्ट जो है, सीरियक जो एंशंट टेक्स्ट हैं, उनके अंदर उसका नाम है जिन्न, जहां से जिन्न या जिन्नात शब्द निकलता है। आप अगर पढ़ेंगे एंशंट आर्टिफैक्ट, तो आप हिस्टोरिकली इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। बेलशज़ार सिलेंडर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके अंदर पर्शियन हिस्ट्री है, जिसके अंदर बेबीलोनियन हिस्ट्री है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, क्या होता है? यहोवा परमेश्वर एक अद्भुत काम करता है, एक हाथ लिखता है, मने मने तकेल उपसरिन। हालेलुया। मेरे पास वो ओरिजिनल राइटिंग है, जैसे लिखा हुआ है ओरिजिनल एंशंट लैंग्वेज में, मने मने तकेल उपसरिन। तो आपको मालूम क्या होता है भाई और बहनों? इस राइटिंग को कोई पढ़ नहीं पाता है। उसके जो जादूगर होते हैं, टूना करने वाले होते हैं, विचेस होती हैं, जो वार्ड लॉर्ड होते हैं, सॉर्सरर होते हैं, अकल्टिक लोग होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते कि ये हाथ क्या लिख रहा है। हालेलुया। तब ये जो राजा है,
ये बेटा है नबूकदनेस्सर का, इसकी माँ अभी भी जिंदा है। इसकी माँ को मालूम है, वो अपने बेटे को बताती है। इसी चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, ये जो चैप्टर है इसका 10 वचन से अगर आप पढ़ेंगे, दानियल 5:10 से, क्वीन जो है ये मदर है इसकी, ये राजा को बताती है कि तेरे पिता के ख्वाबों को, तेरे बाप नबूकदनेस्सर के ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने वाला एक खुदा का खादम है इस बेबीलोन में, उसका नाम है दानियल। तो राजा दानियल को बुलाता है। ये राजा, इसने दानियल का सम्मान नहीं किया, दानियल को नहीं जानता, लेकिन ये दानियल को बुलाता है। हालेलुया। और दानियल के आगे दानियल को कहता है कि मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, तू ये राइटिंग मुझे इंटरप्रेट कर दे। मने तकल उपसरीन। तो दानियल क्या कहता है? दानियल कहता है अपना पैसा अपनी पॉकेट में रख। पढ़ लीजिएगा दानियल 5 अध्याय के 10 वचन से आगे। यहाँ पे 10 में लिखा था, क्वीन बिकॉज ऑफ द वर्ड्स ऑफ द किंग एंड हिज लॉर्ड केम इनटू द बैंक्वेटिंग हॉल, द क्वीन डिक्लेयर्ड, ओ किंग लिव फॉरएवर, let not your thoughts alarm you, nor your color change. There is a man in your kingdom in whom the spirit of the holy gods, जिसके अंदर पवित्र, ये तो देवता ही कह रहे हैं अपनी हिसाब से, लेकिन उसके अंदर यहोवा का रूह है। In the days of your father, light and understanding and wisdom, like wisdom of gods, were found in him. King Nebuchadnezzar, your father, the king, made him chief of the musician, enchanter, Chaldeans and astrologer, because an excellent spirit, knowledge and understanding to interpret dream, explain riddles and solve problem were found in Daniel, whom the king named Belteshazzar. बेल्टशज़ार राजा ने किसका नाम रखा था? दानियल का। नाउ लेट डैनियल बी कॉल्ड एंड ही विल शो द इंटरप्रिटेशन। तो दानियल को लेकर आए। द किंग आंसर्ड एंड सेड, डैनियल, यू आर दैट डैनियल, वन ऑफ द एग्जाइल्स ऑफ जूडा, होम द किंग माई फादर ब्रॉट टू जूडा। आई हैव हर्ड ऑफ यू, द स्पिरिट ऑफ गॉड्स इज इन यू। वो उसको कहता है ये है ना, आई हैव हर्ड, ये तेरे बारे में सुना। तो क्या कहता है? नाउ इफ़ यू कैन, 18 वचन, इसका 18 वचन पढ़े। नाउ इफ़ यू कैन रीड द राइटिंग एंड मेक नोन मी इट्स इंटरप्रिटेशन, यू शैल बी क्लोथ विद पर्पल एंड हैव चेन ऑफ गोल्ड अराउंड योर नेक एंड शैल बी द थर्ड रूलर इन द किंगडम। देन डैनियल आंसर्ड सेड टू द किंग, लेट योर गिफ्ट बी फॉर योरसेल्फ। दानियल कहता है, ये जो सोने की चेन तूने मुझे देनी है, पर्पल कपड़े मुझे देने हैं, जो थर्ड रैंक की पदवी देनी है, अपने पास ही रख। हालेलुया। ऑब्वियसली दानियल इससे खुश नहीं है। आपको मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि यहोवा के पवित्र बर्तनों के अंदर मदिरा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो दानियल क्या करता है? दानियल सच्चा नबी है खुदा का। उस ज़माने में अगर आप राजा को ये बताओगे ना कि तुझे सज़ा मिलने जा रही है, तो मारा जाएगा, तो राजा उन नबियों का सर कलम करवा देता था। अगर आप राजा को मीठी मीठी बातें बताते हो, ओ बरकत आने जा रही है, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत मिलने जा रही है, रियल एस्टेट मिलने जा रहा है, जंग जीतने जा रहे हो, वीजे लगने जा रहे हैं, अगर ऐसी मीठी भविष्यवाणी करोगे तो ऑब्वियसली राजा बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। लेकिन दानियल सच बोलता है, राजा तुझे तोला गया, तू कम पाया गया, तेरा राज्य तेरे से छीन लिया गया है। ओरिजिनली दानियल ने हिस्ट्री बताती है, राजा की आंखों में आंखें डाल के कहा कि आज ही तेरा बैंड बजाएगा यहोवा। जिस रात तूने यहोवा के पवित्र बर्तनों में मदिरा डाल के पी है, उसी रात यहोवा के दूत तेरा बैंड बजाएंगे। ये दानियल ने कहा एक्चुअली। हालेलुया। और कौन तेरा बैंड बजाएगा? यहोवा ने किसी को चुना है जिसका नाम है साइरस। हालेलुया। साइरस के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो बेल्तशस्सर है, इसके राज्य का अंत आ गया है। क्यों अंत आ गया है? क्योंकि शैतान ने इसको भरमाया कि वो यहोवा के पवित्र बर्तनों के अंदर मदिरा डाल के पिए, उसकी औरतें, उसकी रखेलें और उसके राज्याधिकारी सब पिए। तो दानियल कहता, गॉड हैज नंबर्ड योर डेज, योर टाइम इज अप। यहोवा ने तुझे तोल दिया है, तुझे नाप दिया है, तेरा टाइम खत्म हो गया राजा। डिवाइड कर दिया। परहेज का मतलब होता है डिवाइड, तकेल का मतलब होता है, मने का मतलब होता है योर डेज आर नंबर्ड।
तकेल का मतलब तकड़ी जो शब्द है यहीं से निकला है, तकेल तकड़ी, तोलना, तू तोला गया है। परेज का मतलब होता है कि तुझे काट दिया गया, टुकड़े कर दिए गए, तेरे डिवाइडेड, एंड तेरा राज उपसरीन किसी और को दे दिया गया। उपसरीन परेज, परेज वर्ड का मतलब है पर्शियन लोगों को, पर्शियन लोगों को तेरा राज्य दे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो लैंग्वेज थी ना, मेरे पास उसकी ओरिजिनल कॉपी है। ये लैंग्वेज बड़ी विचित्र लैंग्वेज थी जो दानियल पढ़ गया। ये पेलियो हिब्रू नहीं थी, ये जैसे कि वर्टिकल ओवरलैपिंग लेटर्स थे, एक लेटर के ऊपर दूसरा लेटर था, वर्टिकली खड़े थे। इसे एटबाश कहते थे, क्रिप्टोग्राफी। ये एक किस्म की क्रिप्टोग्राफी थी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब एक ऐसी भाषा जिसके अंदर मैसेज को छिपा के रखा गया है, ताकि जिसको डिकोड करना आता है वो ही उसका मैसेज समझ सके। तो डैनियल के अंदर यहोवा का रूह है, डैनियल समझ जाता है। राजा को बोलता है तेरा राज्य गया, तू खत्म। वो मने मने तकेल, मने मने तकेल, मने मने गॉड हैज नंबर्ड योर डेज, तेरे दिन गिन दिए यहोवा ने, तू नाप दिया गया। तकेल, तुझे तकड़ी में डाल के तोल दिया गया। परेज, तेरा राज्य टुकड़े हो गया। उपसरीन, ले लिया गया तेरे से। परेज का मतलब पर्शियन, पर्शियंस को दे दिया गया। दानियल ये सच्ची भविष्यवाणी करता है राजा के आगे। दानियल झूठ नहीं बोलता, सच्चा कलाम देता है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद का एक अजीम बंदा है बाइबल में जिसका नाम है यशाया। दानियल तो जवान था, यशाया उस समय बुजुर्ग था जब ये कैप्टिविटी आई, इजरायलियों के ऊपर सजाएं आई। तो यशाया की पुस्तक अद्भुत है। यशाया ने ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जिनके ऊपर यहोवा का सिग्नेचर है, हैंड ऑफ गॉड है। आपको मालूम, यशाया ने एक बहुत अद्भुत भविष्यवाणी की। यशाया नबी की पुस्तक 45 चैप्टर में लेके चलता हूं आपको। चलिए मेरे साथ यशाया 45, आइजाया 45 में चलिए, यशाया 45, और पढ़िए मेरे साथ। अपनी बाइबल निकालिए, टर्न टू आइजाया 45। पहले आप पढ़िए यशाया 45 में से मैं वचन देता हूं आपको, पहले वचन से। Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have grasped, to subdue nations before him, and to loose the belt of the kings, to open doors before him, that the gates may be closed. सुने ध्यान से, बड़े गौर से सुनना। यशाया ने भविष्यवाणी की, यशाया 45 अध्याय में। आपको मालूम, यशाया जब ये भविष्यवाणी कर रहा है, जिस समय यशाया ये भविष्यवाणी कर रहा है, उस समय अभी इज़राइल गुलामी में नहीं गया है। यशाया ये भविष्यवाणी बहुत पहले कर रहा है, और इस भविष्यवाणी में यशाया कहता है, यहोवा कहता है मेरे अभिषिक्त से, जिसका नाम साइरस है। सुनिए, साइरस जो नाम है यहूदी नाम नहीं है। बाइबल में किसी यहूदी का नाम साइरस नहीं है। तो अचानक एक दिन बैठे यशाया को ये कलाम आता है स्वर्ग से, और यशाया कहता है मेरा अभिषिक्त है साइरस। अब देखिए, साइरस तो किसी का नाम ही नहीं इज़राइल में, लेकिन यशाया भविष्यवाणी लिखता है साइरस है जो मेरा अभिषिक्त है। आपको मालूम, जब यशाया ये भविष्यवाणी कर रहा है, इस भविष्यवाणी के 150 साल के बाद ये बंदा पैदा होता है, लगभग 155 ईयर्स। यशाया ने भविष्यवाणी कर दी, तो उस बंदे का कहीं नामो निशानी, उस बंदे का बाप भी पैदा नहीं हुआ अभी। पर परमेश्वर का दास बता रहा अपने दास को कि बंदा जम्मेगा, पैदा होगा, उसका नाम भी साइरस रखा जाएगा, और वो गैर कौम का बंदा है, लेकिन प्रभु कहता वो मेरा अभिषिक्त है। बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत तरह के सवाल उठाते हैं, उसकी पास्ट लाइफ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ढंग से एनालाइज करते हैं। वो जानते नहीं है यहोवा परमेश्वर की ताकत, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ, यहोवा परमेश्वर के काम वो किसे चुनता है, कैसे चुनता है, कब चुनता है। ये उसका राइट है भाई और बहनों। आप यहोवा परमेश्वर के अधिकारों को चुनौती नहीं दे सकते। वचन में लिखा है एक बर्तन
मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का भांडा कभी कुम्हार को ये नहीं कह सकता कि मुझे ऐसे ना बना बल्कि ऐसे बना। कुम्हार की मर्जी है, वो एक ही मिट्टी से, एक ही लौट है मिट्टी की जो उसने गूंदी है, उससे एक चिराग जलाएगा जो किसी देवता की टेंपल में जलेगा। उसी मिट्टी से एक बर्तन बनाएगा जो टॉयलेट में रखा जाएगा। उसी मिट्टी से एक बर्तन बनाएगा जो किचन में पीने के पानी के काम आएगा। उसी मिट्टी से एक बर्तन बनाएगा जो राजा के महल में सुराही के तौर पे रखा जाएगा। ये मर्जी है कुम्हार की। हालेलुया। यहोवा ने चुना, यहोवा ने अपने नबी को बोला कि वो बंदा, अभी तो उसका बाप भी पैदा नहीं हुआ है, वो बंदा पैदा होगा, उसका नाम होगा साइरस। ये है भविष्यवाणी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दिस इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। ये होते हैं नबी। तो कहता है कि मैंने उसका सज्जा हाथ, राइट हैंड मैंने पकड़ा हुआ है उसका। यहोवा कहता है उसका राइट हैंड मेरे हाथ में है, वो राष्ट्रों को झुकाएगा और क्या करेगा? बहुत गहरी बात लिखी है, वो राष्ट्रों को झुका डालेगा। एंड टू लूज द बेल्ट ऑफ द किंग, असली भाषा में लिखा है वो राजाओं की पतलून पीली कर देगा। हिब्रू कोलोकियलिज्म है, जैसे पेंट के अंदर ही किसी को टॉयलेट आ जाए, उसका डर ऐसा होगा। अब सुनिए आप ध्यान से, ये जो राजा है जो यहोवा परमेश्वर के पवित्र बर्तनों का अपमान करता है, बेलशस्सर, ये राजा बेबीलोन का राजा है। बेबीलोन के चारों ओर एक रिवर है, यूफ्रेटिस, फरात नदी है, बहुत बड़ी नदी है। जो ये राजधानी है इनकी बेबीलोन, ये इतनी जबरदस्त राजधानी है, इसके चारों ओर दरिया बहता है और काफी गहरा दरिया है। तो जो बेबीलोन के लोग थे ये समझते थे कि हमारी राजधानी पे कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई दुश्मन इसके अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि हमारे चारों ओर गहरा पानी है और वो जो पानी है उन पानियों को क्रॉस करना किसी के बस की बात नहीं है। तो आपको मालूम, जिस रात ये राजा मदिरा पी रहा है, जिस रात शैतान इस राजा के अंदर घुस गया है और इसने यहोवा परमेश्वर की हैकल के पवित्र बर्तनों को गंदे लोगों के हाथ में सौंपा है ताकि उसमें दारू डाल के पी जाए। समझ रहे मेरी बात आप? जब ये राजा ये काम कर रहा है, सुन रहे हो आप भाई और बहनों? तो उस रात को क्या हो रहा है? उस रात को साइरस नाम का ये राजा, जो 155 साल के बाद पैदा हुआ है, मैं इसकी कहानी पूरी सुनाऊंगा आपको, साइरस की कहानी। साइरस नाम का ये राजा, इसने चढ़ाई कर दी है बेबीलोन के ऊपर। ये पर्शिया का राजा है, मीड्स एंड पर्शियन किंग है, और ये अपनी बड़ी फौज लेकर आया। बहुत चतुर राजा है। इन्होंने फरात नदी में आने वाले पानी को रोक दिया पीछे ही। फरात नदी में पानी नहीं है, रात को पानी सारी सप्लाई काट दी उन्होंने। अब वहां पे घुटने घुटने पानी है सिर्फ, और राजा रात को जश्न मना रहा है। नए साल की पार्टी है, न्यू ईयर की पार्टी चल रही है, नए साल की हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है भाई और बहनों, और राजा मदिरा के नशे में है। उधर दुश्मन ने यूफ्रेटस रिवर के पानी की सप्लाई रोक दी है, और ये जो राजा साइरस है अपनी फौजों को लेके घुटने घुटने पानी को क्रॉस करके बेबीलोन के अंदर घुस गया है। और ये बेबीलोन के अंदर इनकी फौज घुस गई, और आपको मालूम क्या हुआ? ये राजा तो मदिरा पी रहा है, शराब के नशे में चूर है। इस राजा की फौज ने, बेलशस्सर की फौज ने बहुत आराम से सरेंडर कर दिया साइरस के आगे। और आपको मालूम हिस्ट्री क्या बताती है? हिस्ट्री बताती है जब साइरस आया, जब साइरस ने बेबीलोन के ऊपर कब्जा कर लिया और बेबीलोन गुलाम हो गया, उन्होंने तलवार नहीं चलाई, उन्होंने तीर नहीं चलाया, उन्होंने किसी पे भाला नहीं फेंका। वो अंदर घुसे, बड़ी चतुराई से उनकी शक्तिशाली सेना ने बेबीलोन पे कब्जा कर लिया, क्योंकि बेबीलोन का राजा मदिरा के नशे में चूर है और बेबीलोन की किंगडम में पार्टी चल रही है। भाई और बहनों, ये मदिरा, ये जश्न, ये पार्टियां, ये लुचपुना, ये गंदे काम लोगों का बैंड बजा देते हैं। आपको मालूम क्या हुआ? असली भाषा में क्या लिखा है? वो राजा खड़ा था और वहाँ पे वो ऊपर हाथ लिख रहा था कि तेरा राज्य जो है वो तू तोला गया है, तू कम पाया गया है, तेरी किंगडम ले ली गई, दूसरों को दे दी गई। पर्शियन लोग आ गए हैं, वो विचलित है,
जब दानियल वचन बताता है। इतने में उसे खबर मिलती है कि तेरे देश के अंदर पर्शियन लोग घुस आए हैं और उन्होंने राजधानी पे कब्जा कर लिया। तो आपको मालूम क्या हुआ? उस राजा की पेंट पतली हो गई, मतलब उसका टॉयलेट निकल गया बीच में। वो वर्ड है, पेंट पीली करेगा तू। हालेलुया। क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर, जीवित यहोवा परमेश्वर का अपमान किया। साइरस द ग्रेट एक महान राजा, इसीलिए बहुत सारे जूइश लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को साइरस का टाइटल दिया कि वो साइरस है। उन्होंने सिक्का भी निकाला ट्रंप के ऑनर में, उस पर साइरस की तो इमेज है और डोनाल्ड ट्रंप की इमेज है। तो साइरस के ऊपर मैं और गहरी बातें आपको बताऊंगा। ये है भविष्यवाणियां, ये है अद्भुत भविष्यवाणियों की किताब बाइबल। ये होते हैं भविष्यद्वक्ता। ये नहीं खड़ी हो जा पीले सूट वाली बहन, तेरा लक दुखदा है, तेरे पत्थरियां खड़ी हो जा, आ रहा हूं तेरे घर में, काले रंग का गेट है। ये नहीं होती भविष्यवाणियां, ये केवल ड्रामा है जादूगरी का। बहुत कर रहे हैं ना पादरी, इनको पता लगेगा जब यीशु मसीह के आगे खड़े होंगे। वो कहेगा, दुष्टों मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हो जाओ मुझसे। भविष्यवाणी का मजाक है ये। जिन्हें मालूम भी नहीं भविष्यद्वक्ता कौन है, भविष्यवाणियां क्या लिखी गई हैं बाइबल में, कुछ नहीं मालूम इन्हें। अपने नाम के आगे लगाते हैं प्रॉफिट सो एंड सो। तो भाई और बहनों, हम इस बेबीलोनियन किंगडम, ये बेबीलोन की जो किंगडम है, ये बेबीलोनियन बेल्शस्सर नबूकदनेस्सर के हाथ से निकल गई और किसके हाथ में चली गई? पर्शियन। और अब आप दानियल नबी की किताब पढ़ के देखिएगा कितने जंतु हैं। ये जानवर कौन कौन से हैं? एक शेर का है, शेर है, दूसरा लेपर्ड है, फिर भालू है। ये कौन है? ये शेर, ये जानवर, ये बीस्ट हैं। और फिर जो है वो भालू है जिसके हाथ में 3 रिब्स हैं, 3 पसलियां पकड़ी हुई हैं। ये किंगडम है दुनिया की, जो जानवरों के, जंतु के रूप में, बीस्ट के रूप में। प्रभु यहोवा कहता, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो बीस्ट के हवाले तुम्हें करूंगा मैं। हालेलुया। तो हम बेबीलोन जो है जड़ है। सारे मिस्ट्री यहीं से शुरू हुई है। दुनिया के सभी पंथ, दुनिया के सभी मार्ग यहीं से शुरू हुए हैं, बेबीलोन से। बेबीलोन को शैतान बना रहा है इंसानों को अपने संग मिला के। यरूशलेम यहोवा की नगरी है। हालेलुया। यरूशलेम स्वर्गीय है। हालेलुया। इस शहर में परमेश्वर ने हमें अपने नागरिक ही नहीं, अपने पुत्र पुत्रियों की हैसियत से बुलाया है। तो भाई और बहनों, साइरस के ऊपर और अध्ययन करेंगे यशायाह नबी की किताब से कल सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो प्लीज़ मेरे संग अर्ली मॉर्निंग जुड़ जाइएगा। हम और बेबीलोन, मिस्ट्री बेबीलोन की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और साइरस के ऊपर और अध्ययन करेंगे कल सुबह। दानियल 70 वीक भी अभी मैंने पूरे नहीं किए, लेकिन फिर भी काफ़ी आपको दानियल 70 वीक का अध्ययन यहोवा परमेश्वर ने करवा दिया। हालेलुया। बेबीलोन दोबारा आएगा, बेबीलोन में ही निम्रोद आएगा। हालेलुया। ये आखिरी किंगडम बेबीलोन की किंगडम है जो पृथ्वी पर राज करेगी। हालेलुया। तो कल सुबह फिर मुलाकात करते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। सबको जय यीशु मसीह की।